So let's just start with the session. And first of all, I am Manasvi Sharma, and good evening to all. Good evening. And I'm going to start with a small introduction, and then we're going to proceed further with the webinar. Praco Learn is the project of the Saxenas and Kumar Law Chambers, which is a law firm established in the form of limited liability partnership, working in areas of legal consultancy, practical implication of law, and litigation in various fields such as tax, intellectual property rights, arbitration, contract management, immigration, family law, property law, etc., along with paralegal services. All three gentlemen are the partner of the law firm and co-founders of Praco Learn, namely Mr. Abhinav Saxena, Mr. Abhishek Saxena, and Mr. Navneet Kumar. Mr. Abhinav Saxena is an alumnus of Gujarat National Law University with experience of 11 years. Mr. Abhishek Saxena is an alumnus of Rajiv Gandhi National University of Law with 9 years of experience. And Mr. Navneet Kumar is an alumnus of Rajiv Gandhi National University of Law with 9 years of experience. The Praco Learn holistically covers all practical aspects of law which are quite necessary in professional world. They impart and focus on practical learning of subjects and thus act as a bridge that fills the gap between knowledge of both theory and practical aspects of law through its various courses. Now with this, I would like to invite the panel to address the students further. Thank you very much. Good evening to all of you. We are from Praco Learn, an initiative of Saxenas and Kumar Law Chambers. It's basically a program for practical learning of law subjects and many other fields. This program, which has been devised, seeing the problems faced by the students while studying their law from their law schools. Students actually face many problems. Like, for example, if you are studying any subject of law, then what you study as a law student is quite different when you practice in the court of law or any tribunal or anywhere else in where practice is required. And minute things are there which are not taught in the law schools, but there should be a bridge, and for that bridge we have devised this Praco Learn program. So our today topic is regarding career prospects and skills required in a law student or candidate to get a job in a law firm. What sort of skills you have to be required? Basically, why these skills are important? Skills are important as important as the weapons of a warrior. If you don't have a sharp weapon, then you can't be a good fighter in the real field. And skills are very much important if you have a sharp edged weapons. Same, if as a warrior has a sharp edged weapon, same you have to require some skills like drafting, how to draft, how to counsel, how to manipulate things, how to introduce yourself in the court of law. Many things are required. So there are, in detail we will discuss with you. My two partners will discuss more in detail, and this topic has been there because if you don't have the skills, then there is nothing in the student to excel in his career, because skills are basic requirement to have a good career in future. Career prospects are they actually, you as a student you might be aware that law is not a vacuum concentrate. It's a very vast subject, vast. Have you noticed there are many law subjects coming newly, and yearly there are new acts coming, new things are coming, and new amendments are coming, and with this new scopes are there. And somebody says that the sky is the limit, but if I would say it's not sky is the limit, it's like horizon. Horizon is like that. If you cross something, then you see something is there on another aspect. So at every step, new things will be there for you.
and sky is not the limit. It's like a horizon. So and very very vast, and therefore law is the only profession which is so dynamic in nature, and with this dynamicity, it has its many scopes and many challenges. And for these things, you have to get a solution, and solutions can be drawn from skills. If you have the skills, then you can get the solution from these challenges, because challenges are coming daily. For example, nowadays COVID-19 is there, and you all are there, very much aware that we are not getting the courts open, and many things are there. So technologically we are proceeding, video conferencing are coming. So if I'm a practitioner of taxation laws, if I would give example, example can be given like this. Through if COVID-19 has given a challenge to taxation people in income tax, there is a resident status of 182 days. And if you have a foreigner residing in India, what will be the status? If it will be a resident of India, or whether it will not be a resident of India. It has not been clarified by CBDT or any Government of India notification or circular. So these are the challenges, and scopes are there. So with coming of time, with new technologies are coming, with with every year, new challenges are coming, with new acts are coming. Like for example, just 2-3 years back, 2016, IBC has came, Insolvency and Bankruptcy Code. So new field of law has came. So new laws are coming. So career prospect, future prospects are too much, and phases of skill required. Actually, we have divided it into two phases. While you are studying in your law school, and after that, after getting a law degree. While you are studying in law school, you get your internship at various law firms, various senior lawyers, various NGOs, or various government institutions like departments of law. In various forums are there. And after that, you get even internship also, you get even practice from your, you can see practice after degree, you directly come towards your practical life. So we have divided into two parts, and that will be dealt more detailed in by my senior, other partners. Third issue is this practical question that will determine probability of getting job opportunity placement. Many of the students will be have their question in mind: what sort of skills should we develop? What sort of things we should develop to get a job in a law firm or under a senior lawyer? So for that purpose, there are many questions, and we will cover every aspect of that in detail, and with every point and with everything we will be giving you. List of skills required during internship. Internship period is during your college days, and list of skills required when you work after your getting your degree. And this is quite a different thing. So you will be getting two aspects, and it will be dealt in detail by the other partners. And same is the challenges faced while working in law firm in a metropolitan city. You might be aware that maximum of you like to live a lavish lifestyle. You want to come to Bombay, Delhi, Calcutta. Why? Because corporate culture, corporate things are getting attracted. So, but there are challenges, and many things are there which we will be dealing in detail, and problems are there, and we will give the solutions also to students to how to cope up with these problems. Regarding career prospects, there are career prospects in litigation. Litigation, you might be aware, directly in court practice. Practice in any fora of court, from tribunal, from district court to high court to Supreme Court. Law firms, there are various types of law firms in India, various types, and that will be dealt in detail by my partners, and some like boutique law firms, tax law firms, admiralty law firms, many firms are there. In-house counsels of company, legal advisors, legal managers, in-house counsels, legal advisors, these all are the part and parcel of law of this field.
and there are many career opportunities by these things. Possible and available opportunities. Opportunities are many, and you have to see, and you from the very first semester onward, that while you are studying in your first semester, you have to see which area you have to go through and which area you have to delete from your side. For example, if a commerce student is there and he likes tax, because commerce and tax are very much co-parts with each other, so he should go for a taxation law firm or taxation lawyer doing internship with him, because and with time he should delete all those things which are coming in his mind. I should go in this way, I should go in this way. If you follow a single path, then you will get a good job, even a PPO also. That will be dealt by detail in my partner will tell you how law firms even give PPOs also. There are interns also. There are associate also. There are associate lawyers. Interns, even after getting degrees, you can avail the opportunity of getting an intern. Like in many big firms, even in UNO organizations and even in government institutions, there is the concept of interns. After getting degree or after getting LLM, you can do an intern job, and you will be getting stipend, not salaries. But associate is not is a associated person associated with a law firm. Associates are like CS, company secretaries, chartered accountants. These are the people associated with the law firm. And associate lawyer are associate lawyers. Senior, junior partners, junior partner, litigation lawyer, researcher, paralegal. Paralegal is very important if a student want to excel in his career. And you might be aware of the concept of Munshi. Senior lawyer used to have this as a very important person in his office, Munshi. And Munshi used to do very, very important tasks, from filing, from oath, commissioner attestation, from affidavits. These are very minute things, but becoming a lawyer, you should learn. This is a skill, and you should learn, because even a single notice, if I can give you example, a single income tax notice requires where to file, where to go. Should I go to inspector, or should I go to joint commissioner level, or should I go to for appeal? Where should I go? These are the paralegal things, and these can't be taught in a law books. These are very practical things, and you should be aware while getting you are attached with a law firm or in an internship, because without paralegal work you can't improve your skills in the main official law works. So career prospects I have dealt in, and the rest will be taken by my two partners and founders of Pracolearn in detail, because I have just given a brief idea. Okay. So Mr. Abhishek, yeah, you can carry forward. Thank you very much for your insights. First of all, I would like to apologize if there is any technical problem, and I'm not able to 100% rectify it right now, because some of the participants might have left due to some technical errors. I wish they come back if the technical default rectifies itself. Right. So, starting with the seminar, I would like to quote one. I would like to start with the purpose of the seminar. Why are we conducting this webinar? The reason for conducting this webinar is everybody wants to get placed. Everybody wants to get a job. Everybody wants to know what are the opportunities you have. Right. You do not want to swim in an ocean of opportunities which you cannot even identify. So first of all, you need to understand what is the scope, what are the opportunities you have, so that you can target them. If you will be able to target those opportunities, you will be able to find out the challenges and find out the solutions. Anyways, let us start with the prospects. So as our senior partner, Mr. Abhinav Saxena, has dealt with the career prospects, I'd like to add one or two things to this. It is not just confined to those prospects which we have mentioned over here.
just like in litigation law firms, in-house counsels. It is an endless list. These are opportunities. These can be many in various other specializations or in a miscellaneous or full service firms. This is, you cannot confine it to a particular sphere. It depends upon also it depends upon the vacancy. Also it depends upon the requirement of a particular firm. So in order to achieve that opportunity, in order to avail that opportunity, you need to have some set of skills, right? And adding to what Mr. Abhinav Saxena has mentioned, like about interns, we have particularly mentioned that term interns in career prospects. Reason being, interns, obviously, most of the students must have heard this term during their college days. But after college days, there are firms, there are organizations, just as mentioned by our partner, that there are organizations like UN, there are firms like HRL, and some other international firms who are taking up interns. Even in permanent court of arbitration, you can go for you can plan it as an intern. Anyways, mentioning this particular term is important in career prospects because it is very less known or unknown to the students. Apart from that, the categories mentioned here are like their designations. So these kind of opportunities in terms of jobs or vacancies you may be facing in the times to come, right? So let us come towards the skills slide. Why I'm talking about skills? Hello, am I audible? Yeah, you're audible. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So why are we talking about skills? Skills are the basic important aspect and requirement of every employer, of every placement cell, of every pre-placement offer. If you are not meeting my requirements, अगर आप मेरी requirement fulfill नहीं करो तो मैं क्यों लूंगा भाई तुम्हें? आपके पास एक बेसिक सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए. सो उसको समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, राइट? और वो दो पार्ट है, एक आपके कॉलेज डेज, इंटर्नशिप्स, राइट? और दूसरा पार्ट है आपका आफ्टर हैविंग अ लॉ डिग्री. कॉलेज डेज और इंटर्नशिप्स आर एक्चुअली गिविंग यू द प्रैक्टिकल implications of law in terms of joining an office or a firm where you are basically assisting the senior. Okay, I'm not saying that you are giving you are gaining some knowledge. Obviously, while assisting you will gain, or you should gain, you must gain. But when I'm talking about internships, you must understand that internship must be a successful internship. You are not supposed to go there and come back without any meaning to that internship. You are required to gain some. You are required to have some skills, and you are required to assist your senior or your partner or just direct supervisor. He may be an associate, maybe a senior associate, maybe a partner, or he may be a company boss or whatever. Depends upon the nature of the job in the company, right? And after you get the degree, there are some additional set of skills which are required. And I hope after finishing this seminar, you will be able to understand what exactly you need and how you can approach. So this is all about it. So I hope the purpose of the seminar is a bit clear. Now, after having a law degree, there is some set of questions that comes into mind. At least it comes into my mind. मेरे दिमाग में सवाल आते हैं, and obviously these questions are directly related to the job opportunity and placement, right? ये क्यों है ऐसा? इसका कारण ये है, जो पहला सवाल आता है कि आप जब डिग्री ले लेते हैं तो क्या आप लॉ ग्रेजुएट हैं या आप अकम्प्लिश्ड लीगल प्रोफेशनल हैं? by quoting this word accomplished legal professional, मैं सारे लीगल प्रोफेशनल्स को उसमें इंक्लूड कर रहा हूं जो अपनी फील्ड में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, राइट? they are giving the practical, they are doing the practical aspect, they are performing practical performances, practical duties. They are not just confined to theories, they are actually on the field. So आप लॉ डिग्री के बाद डिग्री ले ली तो क्या आप अकम्प्लिश्ड लीगल प्रोफेशनल बन गए?
या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर स्किल्स की जरूरत है? फर्स्ट क्वेश्चन. Another question that comes into mind during your college days, when you are a law student, is it important to focus on practical aspects of law during semester studies? Does it help in securing placement or practice or self-employment? Believe me, it is very important question, and this will help you in getting a pre-placement offer if you have the answer to this question. And this is very important. This is actually the requirement of every of a law firm. If you know what they want, you can and what you can deliver is actually what they want. They will have it. They will hire you. Okay. Is it complementary to your theoretical learning? I mean, the practical learning, practical aspects, the practical skills, these soft skills. Is it will it be complementary, or is it a separate arena or a separate thing? No, I don't believe it. अगर वो सेपरेट होती तो फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर जॉब पकड़कर आप थ्योरी नहीं, बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते. थ्योरी, आपको बेसिक थ्योरी जरूरी है, इसीलिए आपको कॉलेज में डिग्री दी जाती है, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है. उसका एक पर्पस है. वो पढ़ोगे तब प्रैक्टिकल्स में कुछ समझ में भी आएगा. और प्रैक्टिकल नहीं समझोगे तो वो आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, राइट? सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स. Okay. Another question is that when you enter this competitive environment, how will you survive? Okay, how will you survive? Because there is a cutthroat competition. If you are talking of, as the seminar topic itself suggests, that what are the skills required to work in a law firm or a law office. Now, if you are talking about a law office which is in a metropolitan city, or you are in a full service firm, or your firm is also surrounded by other legal luminaries, you have to work really hard. You have to work like in a cutthroat competitive environment. So, for that, to answer all these questions, you need to possess some set of skills, and you need to possess practical aspects of learning of law. Okay, so it is important to understand the importance of internship and skills. This is why these skills are required. Let us come to the skills that are required during internships. Now, internship, I'm here by the term internship, I'm just trying to address two types of internships that students are these days are doing, like you students are doing, and internships also to those internships which are after which you get after your degree. Well, in those internships you need some additional set of qualities, some additional set of skills, which may be which is enlisted in other slide when you start working in a law firm or somewhere, right? So I would like to add one more thing. I think I just forgot to mention you this question, answer this question. After passing a law degree, are you a law graduate or an accomplished legal professional, right? See, the question itself, the purpose of this webinar itself suggests the answer to this question. The answer is that I'm harsh. Maybe I'm a bit harsh. Please pardon me, but you are not. Believe me, you are not, because being an accomplished legal professional, you are supposed to perform your duties in time. You are supposed to perform all the skills which a professional is required to do. You are not supposed to write answers in the answer sheets of a question paper, right? You are supposed to perform. You are supposed to represent your clients in the court of law. You are supposed to draft complex legal contracts. You are supposed to draft contracts like that of merger acquisitions, joint venture. You are supposed to represent your client in arbitration. You are supposed to do taxation works, family matters. You are supposed to do a lot of family counselings. That demands a great deal of experience. But is it important for you to gain those experiences in years? I believe it is not. It is only that
how you get all those important skills and experiences in a very speedy and fast manner. That's why we are here. So I would now come to this next slide. I would like to enlist the skills required during the internships. The first and the very important thing is that you need to complete a successful internship, first of all. And to complete a successful internship, you need to have a lot of skills. You need to possess these skills so that you can work efficiently. You can create a very good impression on your employer or on your senior or your supervisor, whoever it is or she. So, as I've said earlier, you need to identify your target. See, why internships are important during your college days. I think I'm getting some questions. Okay. Right. See, Carry on. So you need to identify your target first, because as I've earlier said, the scope is like an ocean. Scope of law is like an ocean, or you can say a never-ending canvas of horizon. So you need to identify your target out of it, and in that identifying process, internship plays a very vital role. During internships, you come to know your lacunas, you come to know your skills, and you come to know that how you are able to assist your senior. So for that, you are required to possess a basic understanding of the substantive law where you are getting the internship, right? For instance, if you are working in a law firm that is only based on criminal laws, and you are expected to write a brief of the case as an intern, and you do not know where are these laws mentioned, what is IPC, you do not understand what is CRPC. I'm not expecting you to understand the complete procedure, trial procedure. That is very vast and detailed, and the practical aspects are itself very different. But you need to possess some substantive law. Substantive law are basically the laws which provide you the rights and penalties, rights and that gives the rights and duties, like IPC, right? Indian Penal Code. All of you must have heard about it. So that is a substantive law that is not providing the procedural aspect. So if you have the basic understanding, you will be able to identify that. That identification will help you to identify your scope. Another important thing, you need to practice in an area of law. You need to understand what particular area that law firm, law office is practicing. For instance, while starting this webinar, what the coordinator have mentioned that our law firm is practicing in a certain set of area of practices, in certain area of practice. So if somebody is coming to me as an intern, he must understand what we are practicing in. Okay, if you are practicing in arbitration, and you know that, then you must understand how you must have a basic understanding of it. Okay, you cannot expect that you want to get works in labor laws or in international trade law, which we are not dealing, or some law firm is not dealing, and you want to join that firm. You will not be able to get the practical aspects of that particular field of law. So you need to understand what knowledge, what practice area that firm, that office is doing actually, so that you can enhance your practical knowledge in that field. During those internships, you will assist that senior, and obviously you will gain a lot from them. Another important thing is that you must have a legal and commercial acumen. Why I'm saying this is that you need to understand this factor that commercial aspect is very important for every individual right now. Right now, in the past, and always will be, and it will always be important in the future. Obviously, it will there will be mitigated factors, and the quantum will be different for everybody. But
the commercial aspect matters to a firm because we are in a business, right? अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और अगर हमें वो बिजनेस चलाना है तो अपने बिजनेस के रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, उसके टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज नहीं है, उसके कमर्शियल एस्पेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा बॉस काम करना, काफी दिक्कत होती है। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं लिटिगेशन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है सबको समझने में। अगर आप लिटिगेटिंग लॉयर को ज्वाइन करते हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके पास, और से आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए, इंडिया के बाहर ही चले गए आप, ठीक है, वहां पर भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी स्टाइपेंड्स मिलते हैं, ठीक है, आप वहां चले गए इंटर्नशिप करने, एंड you do not know even Indian Arbitration Act, okay, Arbitration and Conciliation Act of India, आपको बेसिक अपनी कंट्री का भी नहीं पता और इंटरनेशनल कंसेप्ट तो दूर की बात है। फिर आपको उसके टर्मिनोलॉजीज नहीं पता कि भाई आर्बिट्रेशन में नोटिस का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, ठीक है, रिप्लाई में क्या क्या चीज होती है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा काम करना। अगर आप ये नहीं समझा पाएंगे एम्प्लॉयर को, वेल इन दैट केस एम्प्लॉयर और द पर्सन हु वांट्स टू हायर यू एज एन इंटर्न will hesitate to take you back, to take you in his organization, ठीक है। तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स या टैक्सेशन की फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रेगुलर अपडेट्स पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज आती है वहां से आप वो गेन कर सकते हैं। लीगल टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे आईपीसी वगैरह में हम ऑफेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, कि डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज एन एफए, आप एक लेमन की लैंग्वेज में नहीं बोल सकते व्हाट इज एन एफए, ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट मींस इन आईपीसी, और it is there and you need to understand the definition is already given there, so you can at least have a basic understanding of that, okay. So that is the legal and commercial acumen. Commercial acumen में और भी बहुत सारी चीजें आती है जो अभी हम in the meanwhile डिस्कस करेंगे। Commercial acumen में आपके टाइम मैनेजमेंट भी आता है। वैसे अब देखो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर हमने अलग से सेट रखा है क्योंकि ये जो स्किल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I'll deal with that. Sorry? I'll deal with that. I think let me complete with the internship part. Sure, sir. Okay. See, there are some skills like time management, meeting deadlines, office culture, attention to details, and pre-placement offers. There are some skills which are common for internship as well as for working in a law firm or a law office or in an organization. So I will deal with those which are not common, which are there in internship, which are required especially for the internships. The rest part will be dealt by Navneet Kumar. So if I'm talking about research and analytical approach, obviously it is important in both research and analytical approach, but when we are talking about pre-placement offers, now this is very important here. Every one of you, like आप लोगों में से कई स्टूडेंट हैं जो 4th ईयर के हैं, 5th ईयर के हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जाएं। सी, आपका कॉलेज आपके लिए प्री प्लेसमेंट ऑफर लाके रख सकता है, बट दैट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे ट्रैक करते हो। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, जब आप इंटर्नशिप्स करते हैं और सक्सेसफुल इंटर्नशिप्स करते हैं, अपने स्किल्स को वहां पर अपने स्किल्स को और निखारते हैं और बहुत इफेक्टिवली अपने सीनियर को असिस्ट करते हैं, वेदर उनका कोई भी काम हो, मतलब कोई भी इन द सेंस इनको ऑफिस से रिलेटेड उनकी जो भी ड्यूटीज आपको दी जा रही है और आप उसको बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग अनदर इंटर्नशिप दैट सेम फर्म और इन अ बेटर फर्म। That successful internship will add into your CVs, and again if you are doing 2-3 internships in a particular firm successfully, definitely you will get a pre-placement offer. ये एक आपको फंडा बताया, बेसिक फंडा है, किसी से प्री प्लेसमेंट ऑफर अगर आपको लेना है तो, लेकिन उसकी कंडीशन है, यू हैव टू असिस्ट, यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट परफॉर्मेंस, यू हैव टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, you have to give the best research skills, you have to be very you have to be very attentive while we are dealing with details of a particular case or research or whatever. And obviously there is important factor, teamwork.
when you are in a firm, you need to be very keen, and you have to be very particular about the teamwork skills. I hope that part will be dealt by our next partner. But there is one more important thing, that legal jargons. See, legal jargons are those words, those effective phrases which are used in law, especially in various specific particular legal professions, which are very tricky and very difficult to understand. Okay, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार किसी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देखा हो, मर्जर एक्विजिशन हो या फिर जॉइंट वेंचर हो या कोई बहुत इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर प्रीवी काउंसिल के केसेस आपने पढ़े हो, ठीक है, अपने इतिहास के पन्ने को खोलिए और प्रीवी काउंसिल के केसेस को उठाइए, उनके जजमेंट्स पढ़िए, तो उसमें जो लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है बहुत टिपिकल है, और उसमें कई सारे फ्रेजेस बहुत ही टिपिकल फ्रेजेस होते हैं. या फिर जस्टिस कृष्णा ये कि आप जजमेंट्स उठा लीजिए, वो अपने आप में एक नए नए लीगल जार्गन्स और लीगल फ्रेजेस डेवलप करते हैं जो अपने आप में समझना हर एक आम इंसान के बस की बात नहीं है. मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन से डील कर रहे हैं, ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट कि आप लीगल जार्गन्स उतना ही यूज करें जितने की जरूरत है. अननेसेसरीली अपनी नॉलेज शो करने के लिए मत करिए. यू आर नॉट हियर टू शो योर थ्योरेटिकल नॉलेज, यू आर हियर टू डिलीवर योर सर्विस, यू आर हियर टू असिस्ट योर सीनियर. ऑब्वियसली जब जरूरत होगी किसी पर्टिकुलर लीगल प्रोफेशन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको ड्राफ्ट करना है, नेगोशिएट करना है पार्टी से, दूसरी पार्टी से, या दूसरा लॉयर आपके सामने बहुत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, यू हैव टू आंसर दोस टर्मिनोलॉजीज इन दोस टर्म्स, then you are required to answer through those legal jargons. So you must possess the skill of legal jargon, but use it very wisely. Okay. So by this note, I would like to ask Mr. Navneet Kumar to proceed further with the webinar. Yes. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks for having us. अभी तक हमने देखा स्कोप के रिगार्डिंग, चैलेंजेस के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप. What if one student does not have an internship in their student career? Then what? अगर उसने इंटर्नशिप की नहीं, उसके पास स्किल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? क्या वो स्किल की रिक्वायरमेंट उसे नहीं होगी? नो, स्किल की रिक्वायरमेंट whether learn through internship or a professional life, you required as a professional. It's better to learn in a student life, so that student life complement your struggle to in your professional life. तो आपको चीजें सीखने की जो एम्बिट है वो नैरो डाउन हो जाएगी. लीगल रिसर्च स्टूडेंट जो है इंटर्न में गया है, he or she required लीगल रिसर्च स्टूडेंट जो इंटर्न में गया, आई एम ऑडिबल. ओके, लीगल रिसर्च में स्टूडेंट गया है इंटर्नशिप पे और उसको रिसर्च आती है, दैट विल कॉम्प्लीमेंट देयर प्रोफेशनल स्किल्स. सो रिक्वायर्ड इज यू शुड लर्न ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप सो दैट यू विल कॉम्प्लीमेंट दैट थिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ. Just a minute. Now I am audible. Voice proper to? Is it clear? Yes. Okay. Fine. Yeah, it is clear. So, if you are aware about the importance of internship, if you are aware about your skills, and you have used that skill during your internship, you will shrink your struggle period as a professional after getting a degree. अगर आपने नहीं किया है तो you have to learn after getting a degree. That will increase your problem. That will increase your struggle period. That will increase your struggle or your mental ability. So start learning. Do not delay मत करो आप. If you are in 5th year or a 4th year और अभी तक internship नहीं की है, utilize that. Whatever time you have left. और अगर नहीं है तो focus करो in professional life, so that you can overcome with your problems. Now the thing is, skills क्यों requirement करता है, क्यों important है professional life में? There are some aspects, some parts which is dealt by our co-partner
co-speaker Abhishek Saxena, I like to carry forward from there. Like a small example, everybody want a good job. Good job का मतलब which has a decent, at least starting 50,000 rupees bucks. Per month इतना earn कर सको. Is it available in the market in present economy? Yes, I must say yes. But जो वो डिमांड करता है आप वो पूरा कर पाओगे? This is the basic question. मार्केट में जॉब है या है? We have a very vast field. पर क्या उस जॉब के फैसिलिटीज अवेल कर पाएंगे आप? It is completely depend upon you. अगर आप डिपेंड हो कि कॉलेज पे, कि कॉलेज मुझे प्लेसमेंट देगा, आई एम सॉरी टू से दैट राइट नाउ 90% कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते. देन व्हाट? इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, start utilizing your time. Start creating a network at the time of student life. Go to seminar, go to represent your college in moot court, represent your college in conferences, friend circle बढ़ाओ, different college के students के साथ जाओ, professional के साथ interact करो, web पे करो, blog पे करो, internship try and again in same places. Some professionals suggest you कि जाओ different sector को आप ढूंढो. Why? If you are able to channelize your energy in one direction, you will able to get that job easily because your entire focus is in particular one direction. So the scope you need to narrow for yourself. Scope का मतलब लॉ फील्ड, जो वास्ट लॉ फील्ड है उसमें से एक पर्टिकुलर चीज मुझे उठानी है, मुझे इस डायरेक्शन में वर्क करना है. द मोमेंट यू पिक वो पार्ट, यू विल फाइंड आउट कि मुझे इसके चैलेंजेस क्या है. लाइक एग्जांपल, इफ यू वांट टू बी अ टीचर और अ प्रोफेसर, आप क्यों जाओगे लिटिगेंट लॉयर और कॉर्पोरेट हाउस में इंटर्नशिप करने? यू शुड sharp your communication skill, writing skill, research skill, start publishing your papers, articles, so that when you have a degree of master, at least you have 15 to 16 publication. आपको PhD में फिर कोई publication कराने का requirement ही नहीं रहेगा. You will clear your PhD within 3 to 4 years. The thing is, अगर आप 5 years तक आप एंजॉय करते हो लाइफ, इंडीड इट्स योर लाइफ, इट्स योर एजुकेशन, इट्स योर वर्क. जैसे ही आपको डिग्री मिलती है, फैमिली से लेकर सोशल तक सबका एक्सपेक्टेशन बढ़ता है. इन चीजों को ओवरकम करने के लिए स्किल की जरूरत है, टूल्स की जरूरत है. जो इंटर्नशिप में टूल्स हैं उसको थोड़ा सा एग्रीगेट करके मैं एडिशन करके मैं आपको बता सकता हूं कि एज अ प्रोफेशनल आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए. टाइम मैनेजमेंट मस्ट है, बिकॉज यू हैव अ क्लाइंट जिसका रिप्लाई फाइल होना है, किसी ने उसके जस्ट केस फाइल किया है और लास्ट डेट कल ही है. यू वांट मनी, यू विल चार्ज एज यू विश, क्योंकि आपके पास डेडलाइन है कल की. लेकिन अगर आपको कल के डेडलाइन को पूरी करनी है तो आपको ड्राफ्ट रेडी करनी होगी, तो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए. अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपका पैसा भी गया, आपकी केस भी गई. लेकिन हर प्रोफेशनल के लाइफ में एक एटलीस्ट चांस आता है जिसको ग्रैब करना पड़ता है दोनों हाथ से. वही आपको सीढ़ी देता है, लैडर इन योर प्रोफेशन, टू एक्सेल, इंक्रीज योर पोजीशन फ्रॉम वन स्टेप टू अदर. जिस प्रोफेशन में हो, रोज के दिन में हर साल लाखों नए कंपटीशन क्रिएट होती है, आपको उनसे आगे निकलना है. हाउ विल यू गेट दैट? टू चैनलाइज योर एनर्जी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सो दैट यू कैन अचीव योर गोल. तो भाई गोल तो पता हो. नाउ स्कोप, टारगेट, चैलेंजेस वी हैव डेल्ड. हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इंटर्नशिप भी कर ली. हमने इंटर्नशिप में
एक पर्टिकुलर सेक्शंस में वर्क भी कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते हो जहां टीचर आके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, इंटर्नशिप वो नहीं है। यू आर गोइंग फॉर सम इंटर्नशिप टू असिस्ट समवन, आप उसके काम में मदद कर रहे हो। द मोमेंट यू प्रोवाइड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन हिज वर्क, ही विल रिकॉग्नाइज यू। अगर वो रिकॉग्नाइज करता है या करती है, you will secure your job. I have at least 30, more than 30 professionals जिसको मैं जानता हूं during my college time, जिसने अपना जॉब इसी तरह सिक्योर किया है। We are from national law schools and हमारे कॉलेज ने प्लेसमेंट नहीं दी थी, but that particular person placed himself without the effort of college. So आप कॉलेज पे कंप्लीट डिपेंड मत हो, वरना आप फिर 5 years के बाद से आप एक दूसरे को कोसोगे। पर द थिंग इज, जो आपके हाथ में है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीम लीडिंग एंड का जो स्किल है, यू मस्ट नो। आप घर उससे कैसे चला सकते हो, फैमिली कैसे बना सकते हो। विदाउट टीम लीड स्किल, ना आपका सोशल लाइफ चलेगा, ना प्रोफेशनल लाइफ चलेगी। ये आपके प्रोफेशन के लिए भी जरूरी है, आपके सोशल के लिए भी जरूरी है। टीम वर्क, लीडरशिप आपको एक स्टेज से अगले स्टेज तक लेके जाता है। आई हैव एग्जांपल, वन ऑफ माय बैचमेट वर्किंग इन अ गुड लॉ फर्म, कैटेगरी 2 टायर लॉ फर्म थी। सीनियर को डेंगू हो गई, 3 मोस्ट सीनियर्स जो थे उन्हें डेंगू हो गई एक साथ 3 दिनों में। He is the one who lead the office for a 15 days, जिसमें 3 नए केसेस आए और 4 फाइलिंग हुई। Senior was so impressed, the moment he joined the office, उसने उसको प्रमोट कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी थी, वो उसके पास स्किल था, उसने ग्रैब किया। ये आपके पास भी है, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करोगे, फाइंड करोगे, यूटिलाइज करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। अगर आप प्रैक्टिकली बहुत साउंड हो, थ्योरेटिकली बहुत साउंड हो, फैमिली में आपके फादर लॉयर है, आप उनके साथ लगते हो, उनके क्लाइंटेज आपको मिलता है, फेयर इनफ, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। What if after getting a degree आप चाहते हो कि आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहो? Do you have a client? Even though you have skill और आपने नेटवर्किंग नहीं की है अपनी, तो आपको क्लाइंट कहां से मिलेगा? नेटवर्किंग होगा कैसे? देखिए, कॉलेज लाइफ में बनती है नेटवर्किंग थ्रू डिफरेंट मोड्स, जो मैंने अभी कुछ समय पहले बताई है आपको। इंटरेक्ट विथ अदर स्टूडेंट्स। हर एक पर्सन पूरे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, किसी ना किसी को आपकी जरूरत कभी ना कभी पड़ेगी, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। यू विल हैव योर नेटवर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीलिंग प्रोसेस, you must understand the situation of the client because the competition is so high. आपने जो कोट किया है, might be मार्केट में ऐसे 50 लोग बैठे होंगे जो आपसे 50% रेट पे काम करना चाहते हैं। इट इज योर स्किल कि आप क्लाइंट को जाने ना दो। अभिषेक सक्सेना लीड करते हैं हमारे ऑफिस में। अगर किसी क्लाइंट को, वी आर डेड श्योर क्लाइंट उठ के जाएगा नहीं, he will pay the counseling charges also. Tell me frankly, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, we have to pay some consultancy charges. Why advocate not? Percentage advocate की जो काउंसलिंग होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। Why? Only 2 reasons. कंपटीशन ज्यादा है और we do not have a confidence to ask. 5 साल लगा के पैसा इन्वेस्ट करके जो नॉलेज गेन कर रहे हो, डू नॉट फेस इन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तभी मिलता है जब तुम काउंसलिंग करके क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सको।
उसके लिए तुम्हारे पास दो चीजें चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। एडिशन में आपके लिए आएगा कम्युनिकेशन स्किल। यू हैव टू कंफर्ट योर क्लाइंट। अब बैठो, पानी पियो, अब प्रॉब्लम्स बताओ। डॉक्टर की तरह एडवोकेट का प्रोफेशन नहीं है कि सच सच बताया जा सके। इट इज अप टू यू कि मैं क्लाइंट से कैसे एक्सट्रैक्ट करूं ट्रू फैक्ट्स। अगर आपको पता ही नहीं सच क्या है, तो जो वो बोल रहा है उस पर आप ड्राफ्ट करोगे, उस पर केस लीड करोगे, अपोजिट पार्टी एविडेंस प्रूफ करेगी, आप हार जाओगे। गलती क्लाइंट की, केस क्लाइंट का, पर केस हारने का ठीकरा आपके सर पे। इट विल सफर योर बिजनेस, इट विल सफर योर प्रैक्टिस। यू मस्ट बी अंडरस्टैंड कि सामने वाला सच है या झूठ है। दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई वी से जब इंटर्नशिप जाओ, ट्राई टू ऑब्जर्व। सो एडवोकेट के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे केस फैक्ट बनता है और उसी के बेसिस पे डीलिंग होती है, क्योंकि क्लाइंट बेवकूफ नहीं होता। यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एडवोकेट, प्रैक्टिशनर, चाहे वो कॉर्पोरेट में कर रहा हो, चाहे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो। एक ल्यूरा है इंडियन मार्केट में, जहां अच्छी स्टडी बड़े कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं वो चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, बड़ी बड़ी ऑफिसेज में, बड़े चमचमाते ग्लास ऑफिसेज हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, एलीट क्लास हो, वहां बैठ के मैं प्रैक्टिस कर सकूं, डिस्कस कर सकूं, काम कर सकूं। इंडीड, तो सबके अपने रेपरकशंस है, सबके अपने बेनिफिट्स हैं। चूज योर पाथ स्मार्टली, जहां आप काम कर सको। किसी भी फॉर्म में घुसना मुश्किल नहीं है, सस्टेन करके ग्रो करना मुश्किल है। तो चूज योर पाथ इन सच अ वे जहां ग्रो करो और फिर अपने आप को बिल्ड करो उस पर्टिकुलर के लिए। क्योंकि बड़े फॉर्म्स जो हैं उनके रिक्वायरमेंट बड़े होते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो बड़े लॉ फॉर्म्स हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठे हैं, जिनके पास 600 700 की स्ट्रेंथ है एडवोकेट्स की, उनकी रिक्वायरमेंट कॉमन नहीं होती। आपको या तो फ्रेशर होते हुए मीट करना पड़ता है, या तो एक्सपीरियंस होते हुए उनको फिर से अप्रोच करना होता है। इट्स अप टू यू। वी विल डील विद फ्यूचर इन कमिंग 2-3 मिनट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने आपको बताया, अब जॉब मिलेगी कैसे, कहां मिलेगी? अगर हम अपने टॉपिक को देखते हैं तो टॉपिक के हिसाब से हमें यह पता लगता है कि लॉ फर्म्स या इंडिविजुअल एडवोकेट्स के ऑफिस की बात करते हैं। दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर। जो टॉपिक है वो प्राइवेट सेक्टर को लीड कर रही है। सो आई एम फोकसिंग एंटायरली ऑन प्राइवेट सेक्टर इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का रिक्वायरमेंट क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे फ्रेशर चाहिए जो असिस्ट कर सके। असिस्टेंस ऑन व्हाट? एंटायर ऑफिस वर्क, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, ब्रीफिंग, कैरियर ब्रीफ। ब्रीफ करने के बाद से आप केस का उसको तैयार कर सको, कोर्ट के लिए फाइल रेडी कर सको, ताकि जो सीनियर है उसको मिनिमम वर्क करना पड़ सके, ताकि जो सीनियर है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मीटिंग करने जा सके, ताकि जो सीनियर है वो डील्स फाइनल करके ऑफिस को पैसा ला सके। अगर ये काम सीनियर करेगा तो उसके बिहाफ पे जो वो फेस वैल्यू है उस फॉर्म की वो कौन करेगा? दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ जूनियर्स। जब जूनियर्स आते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके सब्सटेंशियल लॉ का कितना पकड़ है। नो वन, इवन आई एम सेइंग दैट अ टॉप मोस्ट लॉ ऑफिस, उनको भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो फ्रेश लॉयर है वो कोरा कागज है। दे हैव टू ट्रेन थ्रू आवर वर्क, बट उनकी ट्रेनिंग रिगरस होती है।
वो 18 घंटे काम कराते हैं. If you are able to cope up with that amount of work, you will sustain in there. If you are not able to cope up with that stress, आप 15 दिन में छोड़ के चले आओगे. The moment you get such a big firm, आपका सोशल लाइफ नहीं रहता. आने का टाइम होगा, जाने का टाइम नहीं होगा. इंडीड आपका पैसा, फी या रेम्युनरेशन या सैलरी जिसको आप कहते हो, वो बहुत अच्छी होगी. और उसको खर्च कब करोगे? सो यू नीड टू रिक्वायर योर नीड. वो नीड आपको लीड करती है कि आपको जॉब कैसा चाहिए और कब चाहिए. आफ्टर गेटिंग डिग्री चाहिए. सो जो रिक्वायरमेंट है, ट्राई टू मीट ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, ताकि जब आप बाहर निकलो तो उसमें एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज इनपुट को एडिशन कर सको. उसमें इस एडिशन से आपका जॉब सिक्योर होता है. अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको. फॉर्म्स है, लिटिगेशन फॉर्म है, कॉर्पोरेट फॉर्म है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट फॉर्म, लिटिगेशन फॉर्म. सम कॉर्पोरेट फॉर्म डूइंग ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क, some firm doing contractual as well litigant work, some doing only litigant work. इन चीजों को वो अपने हिसाब से टीम में बांटते हैं. अब माइट बी यू आर इन सच अ टीम वेयर रिसर्च ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. यू कांट से कि मुझे तो कोर्ट में भी जाना है, दे विल फायर यू. सो योर इंटेलेक्ट, जो आपका फ्रीडम है वर्क के लिए, वो बड़े फॉर्म्स में कम होता है. इंडीड द इंटेलेक्ट कंपेयर टू अदर फॉर्म्स, वहां के पार्टनर्स, वहां के जॉब करने वालों का हाई लेवल पे होता है अपने एरियाज में, लेकिन एम्बिट बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि दीज पर्टिकुलर पर्संस फोकस ऑन वन सर्टेन डायरेक्शन. दैट्स व्हाई वो स्पेशलाइज्ड होते हैं. दैट्स वाई कंपनीज उनको पूरे साल का करोड़ रुपए की रिटर्नशिप देती है, तभी वो आपको पे कर पाते हैं. तो अगर आप चाहते हो वर्क में फ्रीडम, वो फ्रीडम आपको बड़े फॉर्म्स नहीं देते. फिर वो फॉर्म्स देती है मीडियोकर. जहां वो लिबर्टी देती है आपको सोचने की, जहां वो लिबर्टी देती है आपको करने की, क्योंकि ये है डील, ये तुम अपने हिसाब से करो. बड़े फॉर्म्स विल नॉट प्रोवाइड यू freedom to interact with client. वो काम उनके सीनियर्स का होता. That's why narrow of scope, decide your goal is important. Law firms हो या इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो, it's your choice. किसी भी प्रोफेशन में जाना है लॉ, इट्स योर चॉइस. स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. एनी चैलेंजेस विल मीट, यू विल हैव अ सॉल्यूशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, अगर मैं एग्जाम्पल 5th ईयर के स्टूडेंट का जो इन वर्ड्स ऑफ गेटिंग अ डिग्री है, जिनका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने, अगर उनका जॉब सिक्योर नहीं है तो व्हाट विल शी डू? कैसे करेंगे? एक बहुत ज्यादा मेरे सोशल नेटवर्किंग पे या फिर फॉर्म के ईमेल पे हमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग आवर वर्क एज अ प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल लर्निंग के क्वेश्चंस हमें बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं. Lots of questions are on a same direction that how to secure my job. मेरे पास अभी कोई ऑफर नहीं है. Such situations create for everybody. On that ground, I will say, instead of panicking, you should try for internship.
not as a student, as a professional. Mediocre firms जहाँ एटलीस्ट 15 to 20 का स्ट्रेंथ है, जहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ वर्क है, वहां पे जहाँ पे स्टाइपेंड मिल सकता है, go there, apply for a job. If they deny, request to have an internship for a 6 month or a year. Go and work there. उनके पास variety of cases होंगी. You will able to, you are an advocate, you are enrolled in bar, you have a right to work. Yes, आपका status जो होगा वो as a associate नहीं होगा, as a intern होगा, but you will learn law. Yes, remuneration कम होगा, but gradually after 1 year, you will compensate that remuneration with a new package, with better opportunity. Instead of working for someone, roaming around him, carrying file, you should go for internship. जाओ आप, लर्न करो प्रैक्टिकल चीजों, कैसे कनेक्ट करो थियोरी को प्रैक्टिकल के साथ, देखो कैसे खेली जाती है गेम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, कैसे खेली जाती है कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. जब कॉन्ट्रैक्ट की वेट करोगे तो आपको लगेगा सब कुछ सही है. I'll explain my experience. I'll explain my experience. I got first family law file in my hand in 2012. After reading the file, I went to my senior, immediate senior. मैंने बोला मैम, our client is so cruel. ये तो अपनी बीवी को मारता है. उन्होंने मेरे को रीड करके बताया कि रीड लाइक दिस, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलत बोला गया है, कैसे तुम्हें बाइफर्केट करना है, कैसे ट्रूथ को एक्सट्रैक्ट करना है. तो यू मस्ट नो हाउ टू ड्राफ्ट इन सच अ वे दैट अपोजिट पार्टी और अ काउंसिल और अ क्लाइंट कंफ्यूज, और यू ऑल्सो मस्ट नो उसको क्रैक कैसे करना है. These things are important. ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, और ये आप सोचोगे क्लास में मिलेगी, नो, इट विल नेवर गोना हैपन. सो एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, आप जिस सेक्शन में भी जा रहे हो, सॉफ्ट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी छोटी चीजें होती हैं. ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट. वही एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आपको चाहिए. डोंट वेस्ट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं आप छोटे शहर से हो या फिर ऐसे शहर से हो जहां पे आपका लिंगू जो है वो टच करता है आपके एरियाज को, आप बहुत फ्लुएंट नहीं हो अपने कम्युनिकेशन स्किल में. यू हैव नॉलेज, you have to either you have to learn the communication skill or you have to learn your expression, how to express myself in front of court, in front of client, in front of office, so that they will understand. Purpose यही है कि आप समझा सको उनको. The moment you communicate your feelings, your knowledge, वो सब भूल जाते हैं, आपकी नॉलेज याद रखते हैं. So never hesitate to explore and express. The moment you stop exploring and expressing, your growth will be stopped. उसका कोई इलाज नहीं है. So जो एक मेंटालिटी है ना सर के अंदर कि मुझे बोलने नहीं आती, मैं कैसे करता हूं, हर कोई गलती करता है, बट एक बार करता है. आपके लिए एक बार गलती समझ आती है, सेकंड नहीं होनी चाहिए. यू नीड टू नो एज ए प्रोफेशनल कि पब्लिक में डीलिंग कैसे की जाती है, इंटरेक्शन कैसे होता है. इंटरेक्शन में कई बार सामने वाला ऑफेंडेड होता है,
You have to take in such a direction जहाँ पे जाके आप अपनी बात को बोल सको और वो सुन सके. कई बार कोर्ट हाइपर होती है. Then what? He or she, the court, honorable court is not willing to listen. On that ground, this is your duty to put your argument, your statement in such a way that court will heard. That's important factor is important for every professional. चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो कलीग हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो. Because licensing is our part of our profession. आपको पुलिस से डील करना है, आपको कोर्ट से डील करना है, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से डील करना है. अगर कंपनी कॉर्पोरेट में हो तो आपको एमसीए से डील करनी है. उनके ऑर्डर्स हैं, उनके सर्कुलर हैं, उनके नोटिस हैं, उनके कंप्लायंसेस करनी है. यू हैव टू डील विद द जीएसटी डिपार्टमेंट. अगर आईपीआर में काम कर रहे हो तो यू हैव टू डील विद द ट्राइब्यूनल. You have to deal with the registrar. So public dealing is must. Apart from that, one thing is very much important: 100% effort. I do not like tax matter. For example, मैं भागता हूँ टैक्स से, and my eldest partner is very much in tax. अब मेरा वो जिल नहीं है टैक्स का, तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता. तो जिसमें जिल है, जो तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन है, जिसमें तुम काम करना चाहते हो, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो मार्केट में है या नहीं. इन 2011 आई पास, मैं स्पेशलाइज था आईपीआर में, और मेरे लिए वर्क नहीं था मार्केट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए. Then what? I left my profession. No, I mold my way in a such a direction जहाँ पे मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ अदर काम आए. So you have to be smart enough to take a path in a such a direction जिसमें आपको काम भी मिले. Like we have a course in Pracolan, final year student, जिसमें हम एक ब्रेड एंड बटर कोर्स देते हैं. उस कोर्स में वो केसेस डील की जाती हैं जिसको एक फ्रेशर इजीली लीड कर सकता है. और अगर कोई केस उसे मिलता है, वो किसी और को शेयर नहीं कर सकता. So whatever earning he has with that case, entirely that amount is for that particular professional. So you have to coin your ideas ताकि आप उन चीजों को छोड़ ना सको. See, just want to add a few things. Right now, when you want a job, am I audible? Right? Yes. When you want a job, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेसमेंट के लिए कुछ चीजें जैसे जरूरत है, अभी नवनीत जी ने बताई. साथ के साथ नेटवर्किंग जो इम्पोर्टेंट है. नेटवर्किंग कैसे, आपको जब तक आप क्लाइंट नहीं बनाओगे, कैसे आप अपना बिजनेस चलाओगे. तो एम्प्लॉयर वो देखता है कि आपके अंदर टीम वर्क स्किल्स या नेटवर्किंग स्किल्स हैं या नहीं है. राइट. उसके लिए आपको और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपकी सिंसियरिटी, जो डेडलाइंस को मीट करते वक्त काम आती है. अब आप जॉब ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको जॉब पे रखे, तो डेफिनेटली आपको अपनी सीवी से, अपने रिज्यूमे से ये रिफ्लेक्ट करना होगा दैट यू आर डूइंग योर जॉब सिंसियरली. और वो कैसे होगा दैट जो भी काम आपको असाइन किया जाता है, पिछली इंटर्नशिप्स में या फिर किसी भी जॉब में, आपने उसको कन्वीनियंटली और इफेक्टिवली पूरा कंप्लीट कर दिया है. और उसके बाद आपने एक सक्सेसफुल इंटर्नशिप का, सक्सेसफुल जॉब का एक सक्सेसफुल रिलीविंग लेटर आपको मिला है, और वो आपके रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट करता है. अगर अब आप अपने काम को, डेडलाइन को मीट नहीं कर सकते, तो आप उस ऑफिस के बिजनेस को हैम्पर कर देंगे. ये एक प्लेसमेंट देने वाला या ऑफर देने वाला कोई भी ऑफिस ये वॉच जरूर करता है. तो आपके अंदर ये काबिलियत
होनी जरूरी है। वो काबिलियत क्या है? वो काबिलियत सिर्फ इतनी सी है कि आपको जो काम मिला, असाइनमेंट मिला, उसको कंप्लीट करिए, टाइम से कंप्लीट करिए और सिंसियरली कंप्लीट करिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि बस आपको वाइंड अप करना है। थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम और उसको पूरी रिसर्च के साथ, पूरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ कंप्लीट करिए। फॉर इंस्टेंस इनिशियल डेज की बात है जब 138 के केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम लोग डील करते थे चेक बाउंस के, तो मेरे पार्टनर के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, आई होप उनको कोई माइंड नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस ये थे, ये जिस ऑफिस में काम करते थे, ये तब की बात है, इन फर्स्ट ईयर ऑफ हिज ज्वाइनिंग द ऑफिस, राइट आफ्टर डिग्री। तो अकम्प्लिश प्रोफेशनली कैसे बंदे चले गए, वहां पर इनको जॉब इतना मिला कि ये अपने काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। फिर इनको एक पर्टिकुलर कोर्ट से अटैच किया गया, जो एक नोएडा में था और एक फिर दिल्ली का, दूसरा कोर्ट था साकेत का, एंड ही मैनेज्ड इट सक्सेसफुली टू फिनिश ऑलमोस्ट आई थिंक 200 और 300 केसेस वर हैंडल्ड बाय यू, राइट अमित? तो इतने केसेस वहां पर ये डील करते थे, जाते थे, लाइजनिंग करते थे, वहां के लोकल सपोर्ट को लेते थे, पैरालीगल्स का सपोर्ट लेते थे, उनको भी हेल्प करते थे और रिप्रेजेंट करते थे क्लाइंट्स को। एंड नॉट इवन अ सिंगल केस वाज मिस्ड, और सबके डेडलाइंस, कोर्ट की डेट्स उन पे मौजूद रहते थे अपने ड्राफ्ट के साथ। तो ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके पास कि आप अपनी डेडलाइन को इफेक्टिवली मीट कर पा रहे हैं और वहां पर मौजूद हैं उस वक्त जब आपकी जरूरत है, जब आपको रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट को। ये फैक्टर आपके इस केस में इम्पार्ट होना, आपके अंदर होना चाहिए। तभी मैं आपको जॉब दूंगा ना। मैं क्यों दूंगा आपको जॉब? अपने बिजनेस को हैम्पर करने के लिए दूंगा? नहीं, आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, राइट? सो आई होप हम चैलेंजेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी कुछ चीजें मैं बोलना चाहता था। स्टूडेंट्स का या कोई भी प्रोफेशनल है जो फर्स्ट ईयर में पास आउट हुआ है या वो फ्रेशर है, अभी वो किसी न किसी के पास अभी जॉब कर रहा है या किसी न किसी के पास इंटर्नशिप कर रहा है, उसके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है सिक्योर करने का खुद को, या आगे पढ़ना चाहता है तो फर्दर कैसे कर सकता है उसको सिक्योर करने के लिए। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है उसके पास एम्पल टाइम है, वो अपने लाइफ को इस तरह से लीड कर सकता है। ही कैन सेंड मी a question, we will lead that. This is a separate issue. But the thing is, जिसके पास टाइम नहीं है, then what? Need to be smart work. पकड़े एक पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस, लाइक जैसे तुमने बोला 138 के केसेस को कोई भी किसी के एडवोकेट को दे देता है, कोई स्पेशलाइज्ड होना जरूरी नहीं है। डाइवोर्स केसेस, फैमिली लॉ केसेस, पैरालीगल केसेस, पैरालीगल जैसे रजिस्ट्रेशन के काम है। अगर आपने जॉब सिक्योर नहीं की है और यू वांट इंफॉर्मेशन, यू वांट नॉलेज, यू वांट एक्सपीरियंस, सो छोटे काम से स्टार्ट करो। एक सेट ऑफ काम जो करने के 6 महीने करने के बाद मार्केट में ये निकलना चाहिए, इज द बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर केस। The moment you create that notion in public, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्सन का 138 का मैटर है स्टूडेंट के लिए, एक पर्सन का 138 का मैटर है स्टूडेंट किसी एडवोकेट को दी गई है, कल उसको फैमिली लॉ होती है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है या उसके कंपनी में टैक्स का इशू है, ही इज द फर्म जिससे वो पहले काउंसलिंग के लिए आएगा। द मोमेंट टू कम टू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल, इट इज प्रोफेशनल्स ड्यूटी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। अरे फैमिली लॉ है यार, मैं करता हूं, अब बैठो डिस्कस करो। सो जिसको जॉब नहीं मिली है वो मार्केट देखे कि मुझे किस तरह के काम इजीली मिल सकते हैं। वी कैन असिस्ट सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलता है। वी हैव सम कोर्सेज जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट के साथ कि ये सेटअप चीजें हैं जो आपको लीड कर सकती है मार्केट में, आपके लिए ब्रेड एंड बटर का काम कर सकती है। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर अ लार्ज फॉर्म और वेस्टिंग टाइम with some other professionals,
जो आपको सिर्फ बड़े ऑफिस में बिठा के आपसे पास ओवर ले रहा है, माई रिकमेंडेशन इज टू गो टू स्विम। अरे तिनके का सहारा कब तक लोगे? तिनका टूट के डूब जाएगा। तो बेहतर यह है कि उस तिनके के सहारे स्विमिंग सीख लो ताकि आप अपना काम कर सको। Right. So that knowledge or a proactive approach toward your profession, ये पर्टिकुलर पर्सन का अपना अप्रोच है। आई थिंक हमने मोरलेस लॉट्स ऑफ पार्ट कवर कर लिया। क्वेश्चन पे आ जाए। Yes, and obviously आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पुट अप करिए, और इफ यू आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशन, होलसम सॉल्यूशन, देन आई वुड लाइक टू सजेस्ट द नेम ऑफ Pracolearn that we are Yes. of whom we are founders. अलग एक और अलग चीज है लाइक विजिट आवर वेबसाइट pracolearn.com. You will get to know कि what type of practical implication of law we are talking about for our professionals who are practicing individually और जिसको इन फ्यूचर बड़े फॉर्म में जाना है। जो स्किल है वो स्किल्स आपको वहां मिलेगा। यू विल एबल टू डिसाइड कि आपको किस डायरेक्शन जाना है। आवर वेबसाइट विल हेल्प यू। और इसके साथ साथ आपको स्किल्स के साथ साथ उस प्रैक्टिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है या फिर टैक्सेशन है, आपको कैसे उसमें डील करना है, सीधे क्लाइंट्स को कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी सीनियर के पास बैठ के आपको एक्सपीरियंस लेना है, एंड तब भी आपको पूरी चीज सीखने को नहीं मिल रही है। तो वो सॉल्यूशन एक ऐसा है कि आपके पास सारे स्किल्स एक झटके में एक साथ आपके पास आएंगे एक पर्टिकुलर सेट में, एंड यू हैव टू लर्न इट वेल, यू हैव टू लर्न इट वेरी सिंसियरली, एंड देन यू हैव टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स। देखिए, हर एक प्रोफेशन के, हर एक स्पेसिफिक फील्ड के, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया या टैक्सेशन हो गया, फैमिली लॉ हो गया, हर एक लीगल प्रोफेशन में हर एक अपने सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, अपने सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं जो उसी पर्टिकुलर स्फेयर में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फैमिली लॉ की बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको क्लाइंट के साथ डील करके उसको कंफर्टेबल भी फील कराना है। बट वहाँ जब हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, तो वहाँ कंफर्ट वाला लेवल नहीं है। वहां पर आपको नेगोशिएट करना है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में दूसरी पार्टी के साथ, या अपने क्लाइंट्स को इसके साथ नेगोशिएट करके उसके सारे पॉइंट्स निकाल के आपको जॉट डाउन करना है। अगर वो स्किल, वो कम्युनिकेशन स्किल है। वैसे टैक्सेशन में आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी है, एंड सिंपली यू हैव टू अप्लाई दैट टैक्सेशन नॉलेज, एंड यू हैव टू गेट द रिलीफ। तो हर एक स्किल हर एक प्रोफेशन के साथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप करिए, और जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो वो लेकर आइए, ठीक है। और आखिर में हम कुछ अनाउंसमेंट्स भी करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चंस एड्रेस कर लेते हैं बच्चों के। मिस्टर मानसवी, इफ देयर आर क्वेश्चंस, यू हैव selected some questions, you can ask. Hello, हाँ I'm sir. audible? Yes. So there's a question by Mr. Ayush Sharma. His question is, how much of a procedural law knowledge should be there while applying to a firm just after the degree, as these procedural laws are quite vast? Okay. Naveen, would you like to answer it? It's a very good question. Actually, procedural law, procedure. You can't say that you can't say that मुझे that much law चाहिए इससे मेरा काम हो जाएगा। And I'm not saying that you have to be in the procedural law on your tape. It's a bare act. But you have a tendency to start learning, start reading. Procedure को पढ़ना start करो, within 1.5 years आपको procedure on tape हो जाएगा। I'm not saying कि आप procedure पढ़ के फिर practice में जाओ। So the thing is, even आपको नहीं आता प्रोसीजर, मैं बाइफरकेट कोई नहीं कह सकता। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी चले जाओगे, वो ये नहीं कहेंगे दीज प्रोसीजर्स आर इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉट। पूरा जो प्रोसीजर है वो इंपॉर्टेंट है, तभी इसको प्रोसीजरल लॉ का पार्ट बनाया गया है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है
स्टार्ट लर्निंग, रीडिंग ग्रेजुअली. जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, रेफर द डायरेक्ट. See, इंग्लिश आप भूल जाओगे. Navneet, your voice is cracking. Your voice is cracking. I'm saying, even you are not aware about the procedure, और आप वो प्रोसीजर आपके टिप पे नहीं भी है, but you have your वेयर एक्ट. Start using that. Every case जब आपके पास आता है, each and every case has their own procedures. बिट ऑफ प्रोसीजर डिफर करता है एक केस से डिफरेंट केस के लिए. किसी में इंटेंशन चाहिए, प्रोसीजर डिफरेंट है. किसी में रिकवरी का पिटीशन डिफरेंट है. तो आपके पास वेयर एक्ट है. स्टार्ट रेफरिंग और स्टार्ट रीडिंग. प्रोसीजर्स को आप कवर कर लोगे. देखो, एक चीज सजेस्ट करूंगा. प्रोसीजरल लॉ, आई थिंक यहाँ पर इनका पूछने का मतलब है सीपीसी और सीआरपीसी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसीजर्स आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी दिए हैं. प्रोसीजर्स आपके कंपनीज एक्ट में भी दिए हैं. सब्सटैंटिव होते प्रोसीजर लॉज भी है. बट उसमें वो इसलिए इंपॉर्टेंट है व्हेन यू अप्लाइंग टू अ जॉब. अगर आपको पता है, अगर मैं एज अ फर्म डील करता हूँ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, उसके लिटिगेशन में, और आपको प्रोसीजर्स के बारे में आइडिया है, यू नो द प्रोसीडिंग्स ऑफ आईबीसी, तो ऑब्वियसली तुम मेरे लिए एक एसेट हो जाओगे. तो मैं तुम्हें हायर करूंगा. तो ऑब्वियसली ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है. बट इसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कई बार प्रोसीजर कोर्ट में जाकर और डायरेक्ट में इनमें फर्क आ जाता है. तो जब आप कोर्ट में चीजें सीखते हैं या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखते हैं, तभी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं. इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप किसी लॉ फर्म में अप्लाई करते हैं. अगर आपको कोई रिप्लाई, आपको सीपीसी का कोई सूट फाइल किया आपने और सामने वाली पार्टी ने रिटन स्टेटमेंट दिया, आपने क्या दिया उसका, फिर रिप्लाई में रिजॉइंडर दे दिया. अब क्या होता है कि सामने वाली पार्टी को फिर से कोई रिप्लाई देना, और आप सामने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब आप क्या फाइल करोगे? तो ये डायरेक्ट में नहीं लिखा. देन इन दैट केस यू हैव टू फाइल सरजॉइंडर. आई होप आई एम ऑडिबल एंड क्लियर. तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको सीखनी जरूरी हैं, और आपको ये पता है तो आप अप्लाई करोगे. तो ऑब्वियसली मैं आपके अप्लाई करोगे तो फॉर्म में, तो मैं तो आपको हायर करूंगा. आप मेरे लिए एसेट हो, मेरे बिजनेस को बढ़ा दोगे. ठीक है. Yes. And apart from that, one more thing. Subjoinder always filed after the permission of the court. So you have, अगर आपने पढ़ा है उन चीजों को, you will implement that things. इसलिए practical implication important है. Second questions, I think it's clear. Hello. Hello. So can we go for another question? Yes. Yeah. So, sir, I have two people who are asking question related regarding COVID. Which legal sector will witness a boost after COVID? Legal sector. Yeah. Apart from IT sector, I think corporate sector is always working during lockdown, where you need to draft contract or a wait contract. Such type of works has not been closed during this epidemic. So desk job, work for home आप कर रहे हो. Even during that epidemic, we have draft at least 20 contracts. वो हम घर बैठ के कर रहे हैं. Drafting aspect is always open. Even हमें रात को 11 बजे भी ड्राफ्ट करना पड़ा है, करेक्ट करना पड़ा है. कोर्ट ऑफ लॉ या आपको मूवमेंट जिसमें करनी है, that will suffer. Even I can tell something regarding taxation also. You can go even in taxation. हम लोग काम कर रहे हैं टैक्स में. एडवांस टैक्स आपका, आप लोग को पता अगर नहीं है, आपके पेरेंट्स भरते होंगे, किसी के बिजनेसमैन होंगे, तो एडवांस टैक्स 15 मार्च से भरा जाता है, 15 मार्च. तो लॉकडाउन होने से पहले हुआ था. इवन रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी ऑनलाइन फाइल हो रहे हैं. सीए लोग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं. तो टैक्स जो लॉज है, जीएसटी भी है, कई प्रोविजंस के दिए हैं. तो ऑनलाइन बहुत काम हो रहा है, ऐसा नहीं है. और टैक्सेशन में काम बहुत है और चल रहा है. सिर्फ ऑडिट का पार्ट छोड़ दें, जो ऑडिट सीए लोग कर रहे हैं. मूवमेंट जहां कोर्ट की अपीयरेंस है,
इवन वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वेकेशन बेंच है, इवन आप वहां पे ऑनलाइन पिटिशंस वगैरह आप फाइल कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो. दे आर सेपरेट प्रोसेस जो हम अभी आने वाले दिनों में उस पर भी वेबिनार एक करने के प्लान में है कि हाउ टू फाइल ऑनलाइन फाइलिंग इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स. व्हाट आर देयर प्रोसीजर्स एंड हाउ वी विल लीड दैट. Is there इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. Yeah. So there's a question by Miss Ria that why to go for litigation rather than judiciary? right? There are pros and cons in both fields. Why? The question is not why. The question is of your own perspective, your own target. If I'm talking about judiciary, you are that means you are looking to sit on the other side of the dice instead of standing on the other side and arguing for a case, representing your client and saying my lord, and saying your honor. Jokes apart, but obviously in judicial services you have the opportunity to decide a case. You have the opportunity of getting a fixed salary. You have various you have exposure to various laws. But when you are talking about litigation, when you are talking to become an advocate and litigating in various laws, you are talking about sky is the limit. The phrase here fits in perfectly. क्योंकि apart from that, yes, indeed, is a very noble and secure job है judiciary. Indeed, इसमें कोई डाउट नहीं है. आपके कोर्ट में कोई भी आएगा, अगर वो आईपीएस है, आईएएस है, अपनी कैप उतार के आएगा, खड़ा पे सल्यूट मारेगा और फिर आपका प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी. इंडीड, बट द थिंग इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. एक जज मर्सिडीज नहीं खरीद सकता. एक जज फॉरेन ट्रिप जाने के लिए परमिशन चाहिए उसको हाई कोर्ट की. एक जज के लिमिटेशन है सोशल लाइफ के ऊपर. एक जज का लाइफस्टाइल इंटायरली डिफरेंट हो जाता है एक एडवोकेट या कॉमन पीपल से. इंटरेक्शन जो होती है आम आदमी की वो डिफरेंट हो जाती है क्योंकि आपके लिए नजरिया बदल जाता है लोगों का. द वे ऑफ एड्रेसिंग चेंज हो जाता है. इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. अगर मुझे वो लाइफ लीड करनी है, इंडीड 80,000 लाख रुपीज पर मंथ का जॉब, नोबल प्रोफेशन, रिस्पेक्ट अलग से, बट आई वांट मनी, देन आई विल गो फॉर अ लिटिगेशन. मैं एक महीने में एक केस का 1 करोड़ भी ले सकता हूं और वो भी सिर्फ एक अपीयरेंस का. इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ योर क्लाइंट. I'll have a very good example. I have a very good example. In 2G case, I assisted my seniors. One of the advocate in Delhi got a bail for 2 Reliance people who are accused in 2G. The day he get the bail order from the High Court, next day उसके पास black Mercedes gift में आती है. You can't expect for a judge. So it's a completely matter of choice. If you want, you can go. If you crack the papers, if you crack the competition, MOOCs, absolutely go for that. Yes, I think we are clear here. Any doubts? There are a few more questions, sir. Sure. Shoot it. All right. So the next question is by Mr. Anurag. His question is, how difficult it is initially to kill your conscience to win the case? Okay. What conscience? You should read your Bar Council Act, which is applicable for every advocate, practicing advocate. There is no conscious word in Bear Act. The moment you are representing your client, you have to be sure that your client is innocent. It is a matter of respondent or a defendant or opposite side who has to prove their point beyond reasonable doubt, saying that yes, I am the accused, I am the culprit, beyond reasonable doubt. So
it is your duty to save your client. अगर कॉन्शियस है, you will not able to earn your money. जीतना तो दूर की बात है, आप केस ही मत लो. देखिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये भी आता है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, यू हैव टू डिफेंड हिम. एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है. इंडियन एविडेंस एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी कम्युनिकेशन आपको और आपकी क्लाइंट के बीच में होता है, दैट इज अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जो आप ब्रीच नहीं कर सकते. वो इसलिए होता है कि क्लाइंट अपने पूरे कॉन्फिडेंस से आपके ऊपर ट्रस्ट करे और आपको सारी चीजें बताए, सो दैट यू कैन फाइट द केस इफेक्टिवली. दैट इज अबाउट डिफेंडिंग एंड फाइटिंग द केस. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंशायंस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. यहाँ पर आपको प्रोफेशन के साथ इमोशंस नहीं रखना पड़ता. यस इंडीड, आपको वर्क हार्ड करना है उसको डिफेंड करने के लिए. आपको पता है, मीडिया में बोल दिया उसको कि वो मर्डरर है, आपको पता है कि वो मर्डरर है, आपको सब कुछ पता है, सबको पता है. बट क्या हमारे कानून ने मर्डरर को पहले से ही गिल्टी बना दिया? ही इज एक्यूज्ड, ही इज नॉट कन्विक्ट अंटिल जज कन्विक्ट्स हिम. ये काम जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशरी का है. हमारा काम है उनके लिए स्ट्रगल करना, उनका डिफेंड करना, और सबको बराबर का अधिकार है. क्रिमिनल लॉ में एक बहुत मशहूर कहावत है, चाहे 100 लोग, लेट 100 accused get away from gallows, but not even a single innocent person go to gallows. मतलब कोई भी इनोसेंट को फांसी ना हो जाए गलती से भी, ठीक है. तो अगर एक दो निकल भी गए कोई बात नहीं. तो हम दोनों पक्षों को बराबर रख के काम करते हैं. और अगर आप एडवोकेट हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क एफिशिएंटली फॉर योर क्लाइंट, वेदर कोई भी क्लाइंट हो, ठीक है. उसके साथ ऑनेस्टी रखो, कॉन्शियस रखना है, ईमानदारी रखनी है, इमोशन रखनी है तो ईमानदारी वाला इमोशन रखो अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति. दैट इज इम्पोर्टेंट. One thing more. I have a very good example. A woman filed a petition of domestic violence against husband. Medical report said, yes, husband ने इनको मारा है. Being an advocate, it is my duty to save my client. And the actual fact is that woman has so much irritating husband in unreasonable demand. उसने इतना इंस्टिगेट कर दिया कि थक हार के उसको हाथ उठाना पड़ गया. इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. न्यूटन का लॉ मोशन की बात करता है, पर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को इतना पोक कर दूं कि वो मुझे स्लैप दे, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. तो अगर आप कॉन्शियस हो कि इसने लॉ वायलेट की है, ही हैज टू फेस द सॉन्ग ट्यून, डजंट मैटर. व्हाई? Because this is your duty to save him. The moment you save him or her, आपने कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपका कॉन्शियस, आई एम नॉट सोइंग कि इलीगल वे में आप केस जीतो, ब्राइब करो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करो, पर जो एडवोकेट एक्ट आपको प्रोवाइड करता है, यू मस्ट फॉलो दैट. माइट बी अ क्लियर हियर. Hello. Hello. हाँ जी, हाँ जी सर. I think this would be our last question. It is by Ms. Jayashree Khotari. What initial points should we analyze in order to choose a career as fresher apart from interest? Very nice, very nice, very nice. It's a personal choice and it must be a self-introspect. अब आपको पुलिस से डील करना पसंद है, अगर नहीं है तो आप क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि यू हैव टू डील विद पुलिस. तो जो लिमिटेशन है आपकी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. अगर आप एक जगह पे 8 घंटे बैठ के काम नहीं कर सकते तो आप जज नहीं बन सकते, क्योंकि जज का काम है बैठ के चीजों को सुनना. अगर आप पेशेंट नहीं हो, आपके पास पेशेंस नहीं है सुनने की, यू विल नॉट एबल टू डिलीवर द जस्टिस. दैट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर यू. अगर आपको स्टेज फियर है, आप बोल नहीं सकते, आप समझ तो जा रहे हो पर किसी को समझा नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट बी अ गुड टीचर. तो ये आपको बाइफरकेट करना होगा कि बीइंग अ इंडिविजुअल आपका लिमिटेशन क्या है. देखो, लॉ प्रोफेशन में बहुत अच्छी बात क्या है
कि आप किसी भी स्कोप को चूज करो, वो आपको पैसा देगा। वो आपको आज नहीं देगा, कल देगा, पर वो आपको पैसा 100% देगा अगर आप उस स्कोप के लिए ईमानदार हो और आप 100% एफर्ट डाल रहे हो। सो जो चूज करने का टूल है वो स्टूडेंट खुद है। Apart from this, in addition to your words, Navneet, there is one more factor. Maybe it is not that important, but maybe for others it may be important. आपको अपनी मार्केट एक्सप्लोर करनी चाहिए। यस, मार्केट और कंटेम्प्रेरी जो टाइम चल रहा है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आज की डेट में आपको लगता है कि पैसा इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, तो ऑब्वियसली आप कॉर्पोरेट साइड में आप एक्सप्लोर करते हो, उसमें सेपरेट लिटिगेशन भी आती है, डेस्क जॉब भी आते हैं, रिसर्च के जॉब्स भी आते हैं। वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस में फिट इन हो पाते हो। जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की लिटिगेशन बीच में बहुत आ गई थी जब 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था। ठीक है, अगर आपको कॉर्पोरेट का कल्चर पसंद है तो ऑब्वियसली आप डेस्क जॉब में इंटरेस्टेड होगे और आराम से पुलिस से बच के, पुलिस से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा और अपना डेस्क जॉब कर सकते हो। तो मार्केट फैक्टर उसको एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में भी सबसे ज्यादा पेइंग जॉब्स क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है, बट इसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। कभी कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप एंटर करते हैं तो एक्सटेंसिव और बहुत ही एग्जॉस्टिव वर्किंग आवर्स होते हैं जो हर एक के लिए बस का होता नहीं है कि उसको मीट कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, अब यहाँ पर मैं चॉइस से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, वो आपको इंडिपेंडेंट खड़ा होने के लिए कहाँ तक वैलिड है। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे इंडिपेंडेंट फॉर्म अपनी सेटअप करनी है, अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस सेटअप करना है राइट आफ्टर 1 year ऑफ माई प्रैक्टिस, तो उसके लिए मेरे पास थोड़ी सी कैपिटल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हो, लेकिन मेरे पास नेटवर्किंग होनी चाहिए, मेरे पास क्लाइंट्स होने चाहिए, वही तो आपको फर्म को एस्टेब्लिश करेंगे। अब वो क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? आपके एरिया ऑफ प्रैक्टिस से आएंगे। अगर आपने एक छोटी सी 130 केसेस भी आप डील कर रहे हो, उसी में ही डील कर रहे हो, सिर्फ चेक बाउंस के ही, लेकिन आपके पास क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। तो आपके स्किल्स वहां पर फिट इन होते हैं। चॉइस, योर स्किल्स, वेयर योर स्किल्स फिट इन अ पर्टिकुलर जॉब, and obviously market strategy and market exploration। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपना मार्केट। अगर आप जयपुर में हैं तो वहां का मार्केट क्या कहता है? अगर वहां का मार्केट क्रिमिनल लॉ पे ज्यादा फोकस कर रहा है और इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ वहाँ इंडस्ट्रीज कम है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का काम बहुत कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का काम बहुत कम है, डेफिनेटली आपको वहां पर कुछ ज्यादा काम नहीं मिलेगा। बट अब जैसे कंटेम्प्रेरी टाइम की मैंने बात करी थी, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, ऐसे दौरान इस दौरान कैसे काम चलेगा, कैसे लिटिगेशन होगी? तो ऐसे में जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट है, यूपी हाई कोर्ट है, इन्होंने अपने ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस निकाले हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम अर्जेंट मैटर्स लीड करेंगे। इफ यू आर गुड इन टेक्नोलॉजी, इफ यू आर एटलीस्ट फेयर इन टेक्नोलॉजी, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड यू हैव पेशेंस, तो आप उस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आगे अपने केस को फाइल करवा सकते हैं थ्रू इंटरनेट इटसेल्फ। तो वहां पर आपने लीड ले ली दूसरे लॉयर्स के साथ, दूसरे लॉयर्स के कंपैरिजन में या किसी भी प्रोफेशन में। ऐसे ही अगर कोविड-19 का पीरियड निकल भी जाता है, लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है, उसके आगे भी आप चले जाते हो, वहां पर अब क्या होगा? तो जो नया फेज जो हमें समझ में आ रहा है, वहां पर टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ लॉ, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो दोनों मर्ज हो रहे हैं और ये साथ साथ चलने वाली है अब टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि अब इसको आप साइडलाइन कर दोगे, क्योंकि हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक नोटिस कल ही इशू किया था, यस्टरडे, हाँ कल ही इशू किया है वो नोटिस, और वो ये है कि जितनी भी अभी पेटिशंस आएंगी दैट हैज टू कम थ्रू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। आपको वहां पर करना है और अपना डिफॉल्ट रिकॉर्ड सबमिट करना है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब वो सारी ऑनलाइन फाइलिंग है, तो यहाँ पर अब इंटरनेट की टेक्नोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है फाइलिंग में। और फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपकी हियरिंग्स होंगी, और वो जो आप फाइलिंग करेंगे वो भी बहुत डिटेल पेटिशन नहीं है जैसे हम एनसीईआरटी में रेगुलर पेटिशन फाइल करते थे, हाई कोर्ट में फाइल करते थे। We will plan it, अभी वो ऑनलाइन प्लानिंग, we have a plan to produce such type of webinar, we will inform them, yes। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन फैक्टर्स बहुत सारे हैं, you have to just identify those factors and move ahead with the technology, right? So I hope I'm clear with this point. Yes,
एक्चुअली इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है, कोई So अनाउंसमेंट there's one more question if you can take it. यस 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 प्लीज All right. So this question is by Mr. Ishan Sharma, and this question goes like this: I'm in 8th semester and never ever done any internship and have just a minimum knowledge about the practicality in courts or law firm. So basically, now what should be my course accordingly for these 2 remaining semesters? From which level I should start doing the internship? we have two answer for that. First you are in 8th semester, that means तुम्हारे पास 1 साल है अभी. Go for internship, take your time, learn about practicality. Second is we have a course for practical learning and we are also planning to do a online internship for students. We will discuss this detail in next slide. You can access that thing and utilize for a benefit of your future. अभी इनको वो announcement वाला section बता. Actually, announcement is like that. We are coming up with few more seminars, like webinars, जो specific field से related हैं. That is immigration. अगर किसी को बाहर LLM करना है या कैसे भी immigration के प्रोसेस को समझना है तो उसके लिए हमारा एक वेबिनार कंडक्ट होने वाला है कमिंग वीक्स में. और टैक्सेशन की लिटिगेशन को समझने के लिए वो हम कर रहे हैं कवर अप. जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट लॉज है, एंड देयर आर फ्यू अदर मैट्रिमोनियल है. मैट्रिमोनियल. अपार्ट फ्रॉम वेबिनार्स, we are also going to give you opportunities for online internships, and through that internship you will be able to understand the practical aspects by sitting at home itself. Okay, लेकिन उस internship को avail करने के लिए you have to send us a CV. You have to send us a CV and you have to register on a forum. ये हम टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट पे नोटिफाई करेंगे और आप अपनी हमारी वेबसाइट जो है pracolearn.com, आप उसको एक्सप्लोर करते रहिए. हमारे सोशल मीडिया भी, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, आप उसमें भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह सब उसमें मिल जाएगी. उसको आप अप्लाई करिए और जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा वो हमारे साथ इंटर्नशिप्स करेंगे. एंड वी विल आल्सो ट्राई टू फोकस कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग को मौका मिले, और भी फर्म्स के साथ हम ट्राई करेंगे कि आपको कोशिश करें कि आपको मौका मिले. विल ट्राई. एंड आप कोशिश करिए कि उन कोर्सेज को समझिए, वेबसाइट को एक्सप्लोर करिए जहां पर जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है, करिकुलम से रिलेटेड है, या आपको लगता है कि वो स्किल आपको सीखनी है, या पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको सेट ऑफ ड्राफ्टिंग स्किल्स चाहिए या फिर लिटिगेशन के स्किल्स चाहिए, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद सम ऑनलाइन कोर्सेज. ऑनलाइन कोर्सेज आज के टाइम में आपको के लिए आवश्यकता है, बट वी आर वर्किंग ऑन सर्टेन सेट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज जो हम इन द मीन टाइम हम लोग अपनी वेबसाइट पर नोटिफाई करेंगे. तो आई थिंक ये कुछ. इसके अलावा एक चीज कहना चाह रहा था, जो भी वेबिनार से हमारी बातें सुन रहे हैं, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिससे आपको क्लूलेस हो, आप you need help to explore the solution of that challenge, you can mail us. We will assist you. We will happy to assist you अगर आपको कोई भी डाउट होता है. Yes, you can shoot up your questions on our email ID pracolearn@gmail.com. Okay, and also आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्पेंस देते हैं. होपफुली हमारे आर्टिकल्स और हमारा जो ब्लॉग है उसमें भी आपके शायद कई सारे सवालों के जवाब मिल जाए. नहीं, अभी इसके अलावा एक और भी चीज थी. वी आर इनिशिएटिंग ब्लॉग. वी विल इनकरेज स्टूडेंट टू राइट देयर ओन आर्टिकल्स. वी विल हेल्प देम टू पब्लिश दैट आर्टिकल in internet, on internet for the public. उसके थ्रू भी प्रैक्टिकलिटी और प्रोसीजर दोनों कवर होता है. राइट. देखिए, कई सारे बच्चों को एकेडमिक्स में जाना है या फिर आगे जाना है, तो उनके लिए राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल्स पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
सो Yes, हम yes. आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप लोग को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जो आप अवेल करिए, अपने आर्टिकल्स हमें मेल करिए या पोस्ट करिए, एंड कोई क्वेरी हो तो हमें पोस्ट करिए, एंड वी विल फाइंड, अगर वो वर्दी है देन वी विल डेफिनेटली publish those articles. Sure, sure. And obviously plagiarism is very important. It should not be plagiarized. Copy cut copy paste आपको नहीं करना. Try Yes. कि आप कोशिश करिए अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को डालने की, ठीक है? We will assist them to improve in their writing, no doubt, no problem. But they have to start writing for own without quoting others. CCP. And एक और अनाउंसमेंट यहाँ पर है कि राइटिंग स्किल्स को आर्टिकल्स से रिलेटेड ही है. इन द मीनवाइल आफ्टर द सेमिनार एंड आफ्टर सम टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट कि हम आपको आर्टिकल्स के लिए टॉपिक्स प्रोवाइड भी करेंगे. तो वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन कि हम आपको किस तरह से एक्सेस करवा पाएं. तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आप उसमें अपने सबमिट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट्स, पेपर्स, आर्टिकल्स, and the best one will be published by us. Yes. Any other queries? I don't think so, sir. That will be all. Great. So let us wind up this webinar. And, Yes. Hello. Okay. So by this note, with the practical aspect of learning, and with the bridge between theoretical and practical aspect. I'm sorry, somebody is trying to say something. There's one more announcement I just forgot to tell you. To all those students who have participated and properly attended this seminar, we will be happy to provide you the e-certificate of participation. So the e-certificate of participation of this webinar will be provided on your email ID. And on your email IDs within a week or so, and especially to the college students of SS Jain Subodh College, they will be provided to their coordinators and for the dissemination, effective dissemination. And other students and other academicians and professionals who have attended this webinar, we are I'm very thankful to them, and we'll also provide the e-certificate of participation to everyone who have participated in this seminar. And in future, whatever webinar we are going, we will try our best कि इनको inform किया जाए, they can attend and have some information from our side. Yes, we'll inform each and every event to those participants. नकुल सर है तो कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं है. Okay, sir. So let us wind up this webinar, and with this note, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. आप लोगों ने पेशेंस के साथ इसको सुना, एंड कुछ क्वेरीज आई जो काफी इफेक्टिव थी. Yes. जो शायद आप लोग जो के क्वेरीज आप मेल करो, नो प्रॉब्लम. फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, ईमेल करो, व्हाटएवर यू लाइक. We'll try to answer all of them. Obviously, Yes. we'll इंसानों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसको ऊपर क्रॉस करके हम लोग कोशिश करेंगे आपके आंसर्स देने के. बिल्कुल. तो Thank you. सुबोध कॉलेज के सभी छात्रों को और सुबोध कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी फैकल्टी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा प्रैकुलन और सक्सेना जैन कुमार की टीम की तरफ से. और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा धन्यवाद है. आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छे से इसको अटेंड किया और अपने क्वेश्चन पुट अप करे. आई एम रियली थैंकफुल, एंड थैंक यू मितुल सर. Thank you, the Saxena and Kumar Law Chamber for actually for giving us this sort of opportunity, and like I'm sure that our students will be hugely benefited by the interaction which we had today, and the questions which have been taken up and the response which have been given over those questions would be very helpful to the students to shape their career, that how they want to plan. So this is only the initial level of webinars we are focusing upon. So we look for more to come in future, and I'm really thankful for all this.